So we are discussing the advanced topic of Python. Okay, so till now we created the functions in which we have passed only fixed number of arguments, but this time we will pass the variable number of arguments. Okay, so it depends on our application. For an example, the inbuilt function inbuilt function range can take a single arguments. That means the number of elements. So it will automatically start from 0 and it will take one step size. If you are passing two arguments, so this is the start, this is the starting point, and this is the end point -1. And if you are passing the third arguments, it is the step size. So by default it is taking first as a 0 and a step size as a 1. If you are passing two arguments, so it is automatically taking a step size as a 1. If you are passing third argument, then it is okay. So now in our program also we will learn these things, how to pass variable number of arguments. Okay. So goal is clear, I think. What is the goal? Okay. So this I have written in theory. So the syntax is this: def def. That is the After that, function definition. After the bracket open, bracket close, and in the bracket these we can write in the single line also. ठीक है, एक single line में नहीं आ रहा था, so I have written in two line. So in this square, in this round bracket, we will write our arguments. ठीक है, पैरामीटर्स. ठीक है. नाउ this is a required arguments. Required means we must pass this argument. जैसे कि in the range function we must pass a single argument, that is an and -1. आखिरी एलिमेंट है ना जो. ठीक है. So we must pass this argument. ठीक है, we can't skip that. We can skip the starting point, we can skip the step size, but we can't miss the end point. ठीक है. So these are called required argument that we must pass. So this is the required argument that we must pass, and these are the optional arguments. ठीक है. These are the optional arguments. So suppose first argument, and this is taking default value, this is the nth argument, this is taking default value this. So if we compare this with the range function, if we compare this with the range function that is already created in Python, what will be here? Here will be what? One argument is this. One argument is this, matlab last element, you can say last element. Last element. ठीक है. ठीक है. और बिफोर द लास्ट एलिमेंट इट मस्ट हैव स्टार्ट एलिमेंट. ठीक है. तो start start underscore element, and it has default value what? It has default value 0. For range function, this range function, इस range function में क्या था? This default value is 0. This we must pass, and this is a optional default value is 1. ठीक है. So if we are writing our program, so in this case what we need to write is step size is equals to 1. So what does it means? This is a optional. ठीक है. If we are not passing this, so by default it will take 0. If we the step size third argument, then it will default take 1, and this is a necessary argument, so we must pass this. ठीक है. So this is just an example here, just an example. ठीक है. Inbuilt function है, this is an inbuilt function. So I have given you the example of inbuilt function. Now we are creating our own function. We are creating our own function. Okay, so the example is a little bit difficult I have taken, but I will try to clarify this. So the syntax is clear, friends. Syntax is clear, I think. Def def function. This is the syntax here. Okay, def, that function name. After that, your required arguments in any order. Again, if you need required argument at the start, you can write at the start also. Okay, so required argument. ठीक है. And these are the optional arguments. ठीक है. अब देखो मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ. ठीक है. First I am trying to clarify the program. Suppose you have a number in the form of a string. You have a number in the form of a string.
ठीक है। जैसे कि सपोज यू हैव अ नंबर 1 2 3 4 5, बट दिस इज नॉट अ न्यूमेरिक नंबर, इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, डेटा टाइप इज स्ट्रिंग। ठीक है, you may have a binary number also, you may have octal number also, हमने पढ़ा है ना binary number, octal number. So you have any number, maybe binary number, maybe decimal number, maybe octal number or anything else. ठीक है, so you don't know what is the base मतलब मतलब in what number system किस फॉर्मेट में है, मतलब whether it is a decimal or it is a binary और ये ऑक्टल है। सो यू डोंट नो दिस, बट आपको पता है कि दिस इज अ नंबर इन द स्ट्रिंग फॉर्मेट। ठीक है, इफ आई विल गिव यू अ क्वेश्चन हाउ टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू डेसिमल, आप कैसे करेंगे? प्लीज आंसर, प्लीज आंसर फ्रेंड्स, यस एनीवन सर। प्लीज आंसर। हाँ, कैसे मतलब किसी भी नंबर को, सपोज आपके पास एक नंबर स्ट्रिंग फॉर्मेट में है 1 2 3 4, हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू स्ट्रिंग टू इंटीजर? इनबिल्ट फंक्शन को आपको ये स्पेसेस यूज है नहीं, बीच में? इनबिल्ट फंक्शन नहीं, स्पेसेस नहीं है, जस्ट अ स्ट्रिंग है, डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग रहता है ना, डबल कोट्स 1 2 3 4, सर जैसे मैंने फॉर आई इन तो स्ट्रिंग, int ब्रैकेट में स्ट्रिंग कर। अपेंड हाँ, अगर आई हम इन अ लिस्ट। नहीं वो लिस्ट में ऑल, ओके आप लिस्ट में इंसर्ट कर रहे हैं, नहीं मुझे एक नंबर में आ जाए, जैसे ए वेरिएबल में माय नंबर स्टोर हो जाए ए वेरिएबल में। फॉर आई इन तो a इक्वल टू int स्ट्रिंग। वो कर देंगे ब्रैकेट में स्ट्रिंग। नहीं नहीं, हम इनबिल्ट फंक्शन यूज नहीं करना है, इनबिल्ट फंक्शन हम यूज नहीं करना चाहते हैं। देन सर फॉर लूप। हाँ, फॉर लूप तो लगाएंगे, बट फॉर लूप में व्हाट वी नीड टू डू, हमें क्या करना फॉर होगा? आई इन स्ट्रिंग, आई जैसे वो नंबर के अलग अलग पार्ट देगा तो हम उसे अलग अलग वेरिएबल्स में असाइन कर देंगे। और फिर उसको नंबर कैसे बनाएंगे, एक सिंगल नंबर? सर इंट, अच्छा इंट यूज नहीं कर सकते। ओके, आई एम डिस्कसिंग दिस। ठीक है, अभी मैंने आपको सिर्फ डेसिमल नंबर बोला है 1 2 3 4, सपोज यू हैव ओनली बाइनरी नंबर इन द स्ट्रिंग 0 1 0 1 1 0, और अगर आपके पास ऑक्टल नंबर है, देन आप उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? So that I am discussing. ठीक है, this is a very important question from the point of view of your company's exam. ठीक है, so in this we are learning two things. First thing, we are passing variable number of arguments, and we are discussing the basic question of computer science or mathematics, conversion from string to integer. ठीक है, और फॉर एनी नंबर सिस्टम, नॉट ओनली डेसिमल, कोई भी नंबर सिस्टम हो। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। सपोज आई एम एक टेबल क्रिएट करते हैं, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। ठीक है, ओके, कैन आई हैव टेबल हियर? ओके, दिस इज द टेबल। ओके, ठीक है, सो कैन आई हैव दिस? ठीक है, तो सपोज आपके पास ये एक नंबर है, सपोज आपके पास ये नंबर है, बट दिस इज स्ट्रिंग 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम इसको हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए? माय आउटपुट मस्ट बी दिस। ठीक है, और ये अब क्या होगा? हमारा इंटीजर होगा, और ये अभी क्या है हमारे पास? ये दिस इज स्ट्रिंग है ये। ठीक है, समटाइम्स हमारे पास ऐसा भी हो सकता है, वी कैन हैव दिस, एक बाइनरी नंबर है 0 1 0 1, तो दिस इज स्ट्रिंग है, और इसका बेस क्या है? बेस इज इक्वल टू 2, मतलब ये बाइनरी नंबर है। इसमें सपोज हमारा बेस क्या है? बेस इज इक्वल टू 10, मतलब कि ये डेसिमल नंबर है। अब हमें इसका आउटपुट चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे तो हमें पता है कि इसका आउटपुट यही होगा, बट इंटीज यहाँ पे हमें क्या चाहिए? आउटपुट इसका इंटीजर चाहिए, एंड वी ऑल्सो वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, कैसे करेंगे? सो जस्ट आई एम गिविंग यू आइडिया। सपोज आई हैव टेकिंग दिस 5, अगर हमारे पास ये 5 आ जाता है किसी भी तरह, ठीक है, तो सपोज हमने कह दिया कि सपोज मेरा जो नंबर है DES में स्टोर कर दिया, एंड DE डेसिमल में स्टोर कर दिया, एंड सपोज दिस डेसिमल इज 1।
ठीक है, सपोज स्टार्टिंग में जो हमारा डेसिमल नंबर है वो डेसिमल नंबर हमारा 1 है, या ठीक है। और हमने क्या किया, हमने इसके डिजिट फाइंड किए, डिजिट हमने सबसे पहले 5 फाइंड किया, ये 5, ठीक है। तो हमारे पास ये 5 आ गया लास्ट डिजिट, ठीक है। अब हम ये कर सकते हैं क्या, ओके, डेसिमल कुछ डेसिमल इन, मतलब आपको जो जो इंटीजर जो है ना, इंटीजर वो हम वी कांट यूज इंटीजर फॉर द होल थिंग, बिकॉज हमारे पास डेसिमल नंबर की जगह वी आल्सो हैव बाइनरी नंबर, ठीक है। We will use integer function int, but in this case we can't use. In this case we can't use. Can we use this in this case also, friends? Hello. Yes, sir, you are audible. हाँ, can we use int function in this case when जब हमारा मतलब number in the binary format में है? No, sir. No, sir. ठीक है। Int में So तो we will, डेसिमल में हाँ, आता तो वो इंटीजर बन जाएगा, वो डेसिमल कंसीडर कर लेगा, बट इट इज अ बाइनरी नंबर। सो वी विल यूज int फंक्शन, बट वी विल यूज फॉर दिस फॉर इंडिविजुअल बिट, मतलब इंडिविजुअल डिजिट्स के लिए वी विल यूज, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या, 10 टू द पावर बेस, ओके, डिजिट क्या फॉर्मूला होता था आपको याद है ना, वो मैंने बताया था, डेसिम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन और 2 टू दी पावर नंबर ऑफ डिजिट्स, याद है ना आपको फ्रेंड्स, याद है आपको 2 टू दी पावर नंबर ऑफ डिजिट्स होता था। वो याद होता है, जैसे हम लोग बाइनरी में नंबर है हम डेसिमल में कन्वर्ट करते थे, सो वी विल राइट आइदर 0 और 1 इनटू 2 टू दी पावर द नंबर ऑफ डिजिट्स जो उसके बाद में है, देन प्लस साइन, देन नेक्स्ट डिजिट। हाँ, तो वो वी विल Yes, यूज sir. दैट थिंग्स हियर, देखिए वी विल यूज दिस थिंग, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो देखो मैं वी आर राइटिंग दिस, अब हमने इसमें क्या किया कि थोड़ा बड़ा, सब मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ थोड़ा समझाने की। सी, सो व्हाट वी आर राइटिंग, हमें यहाँ पे इसको 0 करना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है। सपोज हमारा पहले आई डू नॉट नो माई नंबर, सो मैंने कंसीडर किया दिस इज 0 यार, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एक जो डिजिट लिया, दिस डिजिट, ठीक है, ये डिजिट लिया और मैंने क्या किया, दिस डिजिट इनटू, इनटू क्या करते थे हम लोग, टू दी पावर क्या होता था, जो उसके बाद नंबर है हमारे पास, यस और नो, ठीक है। तो हमने सपोज कर दिया EXP इज इक्वल टू हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, यहाँ पे 5 है, तो टोटल हमने क्या कर दिया, लेंथ ऑफ नम लेंथ ऑफ नम -1 कर दिया ये, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे EXP की पावर कर दी। अब आप देखिए इसका, आप देखिए आप क्या आउटपुट आएगा, सेम थिंग है कि नहीं। सपोज अगर आपका नंबर अगर यहाँ पे बाइनरी होता तो हम ये करते थे ना, यहाँ पे 2 इंटू, उसके बाद 2 की 2 टू द पावर नंबर ऑफ डिजिट्स, और फिर जो हमारे पास जो मल्टीप्लाई, अब समझ में आया आपको, सेम थिंग है। इफ आई विल गिव यू दिस एग्जांपल 1010, हम ऐसे करते थे ना, 1 इंटू 2 टू द पावर 3, 1 टू द पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 to the power 1. Do you remember this? Plus 0 Yes, sir. into 2 to the power 0. So same thing मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. This is what? ये क्या है? This is the this length minus 1. This length is 4. This length minus 1. फिर क्या होगा? This length minus 2. तो next time मैं क्या करूँगा? This exp is what? Length minus 1. So consecutively मैं क्या करूँगा? एक exp को -1 करूँगा next time. तो नेक्स्ट टाइम फिर क्या होगा हमारा, EXP विल बिकम व्हाट, EXP -1, एंड देन हमारा जो डिजिट है, डिजिट नेक्स्ट डिजिट क्या आएगा, नेक्स्ट डिजिट मस्ट बी 4, नेक्स्ट डिजिट 4 आना चाहिए। एंड फिर हमें क्या करना है, फिर हमें नेक्स्ट दिस फॉर्मूला फिर से अप्लाई करना है,
So decimal number is equal to decimal number plus int 2 to the power exp. बट अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, दिस इज डेसिमल नंबर, तो यहाँ पे 2 की जगह क्या हो जाएगा 10। और इस वाले केस में क्या होगा, जो बाइनरी है, बाइनरी वाले केस में क्या होगा, बाइनरी वाले केस में ये 2 होगा। यस और नो? अब आप चेक, क्रॉस चेक कीजिए, आप जस्ट क्रॉस चेक इट, ठीक है, क्रॉस चेक कीजिए, यू विल हैव योर सॉल्यूशन। ठीक है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला है यार, वी विल टेक अ डेसिमल नंबर एज अ 0, ठीक है, एवरी टाइम वी विल फाइंड द लास्ट डिजिट। ठीक है, लास्ट डिजिट हम कैसे फाइंड करते हैं, वी विल जस्ट फाइंड द रिमाइंडर, ठीक है, we will find the remainder and then we will update the number by dividing 10, so we will have the last digit, then we will have second last digit and so on। फिर हम क्या करेंगे, we will just take that digit, last digit, ठीक है, into 2 to the power या 4 की पावर या 6 की पावर, जिस भी नंबर सिस्टम में हमारा नंबर है, इफ इट इज ऑक्टल है देन इट मस्ट बी 8 की पावर, 8 टू द पावर, डेसिमल में है तो 10 टू द पावर, बाइनरी में है तो 2 टू द पावर। सो वी विल राइट हियर बेस, वी विल राइट हियर बेस, दिस इज द, ठीक है, फॉर्मूला। सो नाउ यू कैन सी हियर, ठीक है, so no, I will show you in the Jupyter notebook, so you can see here, not here, yes, see, ठीक है, so we are just writing a function here, देखिए what we are passing in this function, we are passing in this function a string, ठीक है, we are passing in this function एक string pass कर रहे हैं and we are passing base, कि वो हमारा नंबर डेसिमल में है तो 10 पास करेंगे, बाइनरी में है तो 2 पास करेंगे एंड सो ऑन, ठीक है, and we are taking a decimal number is 0 here, we are writing exponent or exp, this length of this -1, ठीक है, and every time we are finding the last digit, ठीक है, तो digits in this we are finding dec is equals to dec plus int digit into base into exponent, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं and you will see the output, is it visible friends? ठीक है, अब इसको ड्राई रन करके देखें, डू यू वांट टू सी ड्राई रन फ्रेंड्स? हेलो, कर दो सर, कर दो कर दो। ठीक है, देखिए एक बड़ा सा प्रोग्राम लेते हैं एंड देन चेक कीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, बाइनरी नंबर लेते हैं, ये बाइनरी नंबर लिया हमने, अब देखिए आप, ठीक है, अब नाउ यू टेल मी व्हाट एग्जांपल यू वांट टू टेक हियर, जस्ट टेल मी व्हाट एग्जांपल यू वांट टू टेक हियर। अब कोई भी नंबर सिस्टम बोलिए, कोई भी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर लिखें, ऑक्टल नंबर, सपोज वी आर राइटिंग ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर में हमारे पास 9 नहीं होता है, याद है ना, we have 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, so this is octal number, what is binary equivalent of this, what is binary equivalent of this, sorry, decimal, so this is the decimal equivalent, do you want to cross check online, do you want to cross check online, 2567 2567 octal to decimal, cross check करते हैं whether our solution is correct or not, converting of octal to decimal, let's see whether this is okay, क्या था हमारे पास 2567 octal decimal 1399, चेक कीजिए, 1399, ठीक है ना, करेक्ट आंसर। तो हमने क्या किया, वी हैव जस्ट फाइंड फर्स्ट डिजिट, ठीक है, हमने क्या किया, हमने वी जस्ट कैलकुलेटेड द फर्स्ट डिजिट में व्हेन वी हैव रिटन इनटू बेस टू द पावर, जो उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट्स, द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर दैट, ठीक है, सो दिस इज आवर नंबर सिस्टम कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल, फ्रॉम ऑक्टल टू डेसिमल, फ्रॉम डेसिमल टू डेसिमल, बट ठीक है, और ओरिजिनली हमारा नंबर क्या है, ओरिजिनली आवर नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, सो आई एम डिलीटिंग दिस, ठीक है, ये हमने एक जस्ट रॉ एग्जांपल था ये, ठीक है, नाउ सी, अब देखिए
Most of the times if we require only string decimal to decimal conversion, ठीक है, अगर ज्यादातर टाइम सपोज 75% times you require just decimal to decimal conversion, then we can do this thing here. Or suppose we require 75% times binary to decimal conversion, so we will just write this base is equals to 2. ठीक है, now in अब इस केस में क्या होगा, so suppose you are writing this base is equals to 2 here, so default it will take a binary number, default it will take binary. ठीक है, so if you do so in this case you no need to pass second arguments, so this is called variable number of arguments. ठीक है, देखिए, so now we are writing the same code है, I have not changed anything, but इसके बस मैंने ये changed कर दिया, I have changed only this. ठीक है, now whenever I will call this function, ठीक है, now whenever I will call this function without second argument, it will default consider second argument as a 2. ठीक है, so we can pass second argument any value. If we are not passing second argument any value, it will default take 2. So this is called you can use optional number of arguments, optional. ठीक है, so see I am using the same function, ठीक है, हमने बस उसको नाम चेंज कर दिया, the content is same, everything is same here. ठीक है, I just run it. ठीक है, और सेम प्रोग्राम मैं रन कर रहा हूँ, देखिए 42 आंसर आ रहा है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी 42 आंसर आ रहा था इसमें. ठीक है, सही है ना? यस सर। तो अगर ठीक है, सेम प्रोग्राम में दो चीजें फाइंड करनी हो, जैसे एक बाइनरी करना हो और एक ऑक्टल करना हो, तो वो कैसे करना है? अच्छा आपको बाइनरी भी पास नहीं, हम लोग डेसिमल फाइंड कर रहे हैं, हम लोग नहीं नहीं भी, सर, जैसे बेस इक्वल टू आपने 2 किया है, तो हाँ उसमें मतलब जैसे 8 का रहा, तो सर मतलब एक प्रोग्राम में मतलब 2 कैसे करेंगे? मैं समझा नहीं, आपको मतलब कि दो चीजें फाइंड करनी है, मतलब कि आपको डेसिमल भी फाइंड करना है और एक दूसरा नंबर सिस्टम भी फाइंड करना यस है, सर, यस सर, एक तो ही फिर प्रोग्राम। हमें उसका कोड फिर अंदर लिखना पड़ेगा. ठीक है, अभी हमने सिर्फ आपको इतना बताया है कि कुछ जैसे कि पैरामीटर्स होते हैं, वो कुछ पैरामीटर्स वी कैन कंसीडर देम एज एन ऑप्शनल मतलब कि इट डिपेंड्स ऑन अस इफ वी वांट टू पास देम और नॉट. इफ वी आर नॉट पासिंग तो वो डिफॉल्ट ले लेंगे, डिफॉल्ट जैसे मैंने यहाँ पे 2 सेट कर दिया, अगर मैं यहाँ पे डिफॉल्ट 10 सेट कर दूंगा तो डिफॉल्ट 10 वो कंसीडर करेगा इफ वी आर नॉट पासिंग. ठीक है, अगर आपको जैसे कि दो चीजें कैलकुलेट करनी है तो फिर हमें उसका कोड अलग से उस प्रोग्राम के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। ओके, ठीक है, अब ये क्लियर हो गया. अब मैं इसमें और चीजें देखो, एक और एग्जांपल मैंने लिखा है, देखिए आई हैव क्रिएटेड अ सिंपल फंक्शन, ये इजी एग्जांपल है उससे. आई हैव क्रिएटेड अ फंक्शन, उसका नाम है एग्जांपल. ठीक है, एंड इन दिस फंक्शन वी आर पासिंग थ्री आर्गुमेंट्स, फर्स्ट वन, second and third, we are passing 3 argument. ठीक है, in these 3 arguments these 2 arguments are optional, it depend on us whether we want to pass them or not. If we will not pass this argument, it will default take value this 2 and it will default take value this 3. ठीक है, सो से मैंने क्या किया, फर्स्ट टाइम मैं सबको डिलीट करता हूँ ये. अब देखें, फर्स्ट टाइम आई एम पासिंग 3 आर्गुमेंट्स, ठीक है, 10 20 30, तो क्या होगा, दिस रिक्वायर्ड, दिस विल बिकम 10, this optional one will become 20, 2 will vanish, 2 will vanish and this optional one will become 20 and this will become this 20 again. ठीक है, देखो रन करते हैं, इसको हम 30 कर देते हैं जैसे कि डिफरेंशिएट कर सकें. क्लियर है? अब मैं इसमें क्या करता हूँ, अब मैं इसमें सिर्फ एक ही आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, देखिए only 10. ठीक है, अब मैं इसमें एक ही आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, सो यू विल सी द आउटपुट. तो इट विल दिस विल बी 10 हियर एंड दिस ऑप्शनल डिफॉल्ट वैल्यू इज 2, सो इट विल टेक 2, सो वो 2 प्रिंट होगा. एंड दिस डिफॉल्ट वैल्यू इज 3, तो 3 प्रिंट होगा.
इसी तरह से यू कैन प्ले अराउंड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 आर्गुमेंट्स पास कर रहा हूँ, देखिए आई एम पासिंग 2 आर्गुमेंट, तो फर्स्ट वन क्या होगा 10, सेकंड वन क्या होगा 1 और थर्ड वन क्या होगा डिफॉल्ट वैल्यू। देखिए 10 1 10 1 एंड 3, तो ये वाला ऑप्शनल हो गया। सो यू कैन प्ले अराउंड विद दिस। देखो अब मैं चेंज कर रहा हूँ इसको, देखना अब आप देखो, ये वाला क्लियर था 10 1, फिर ये 10 2, दिस वन यहाँ तक क्लियर है। इसका देखिए आई एम पासिंग 10 कॉमा ऑप्शनल 1 इक्वल्स टू 5, सो अब मैंने इसको क्या कर दिया 5 कर दिया, एंड दिस विल बी डिफॉल्ट 3। देखिए 10 5 3, अगेन अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, आई एम चेंजिंग दिस वन, I am not changing this one. So specifically I am writing their name. ठीक है, this name. So this will change and this will not change. ठीक है, so देखिए next time क्या होगा 10 2 5, ठीक है, and this time we are passing this, so we are changing both of them using their name. So using their name you can also specify, ठीक है। इस केस में सपोज मैं यहाँ पे नेम यूज नहीं करता, then what will happen, suppose I delete this, then what will happen, this will become 5, this will become 5. Do you want to see that? Okay, I will show you, just a minute. I am just copying it and just pasting here, and suppose I am just deleting this, what will happen, this will become 5. See, हर आंसर 10 5 3। और अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अब मैंने सिर्फ ये कर दिया ऑप्शनल 2 इक्वल्स टू 5, सो ऑप्शनल 2 में क्या है दिस वन, सो दिस विल बिकम 5 और दिस विल नॉट चेंज। ठीक है, तो अब देखिए आउटपुट, देखिए आउटपुट, you can differentiate both output, yes or no? Yes, sir. ठीक है, so this was the topic here. So next topic ये I have written in theory, so you can read them, ठीक है, okay okay, ठीक है, इसको you can read now। function as a class or data object, so इस केस में हम क्या करेंगे, I will show you with the example here, okay। so देखिए Sir, we are आप doing classes and function. sorry, Sir, we are doing classes and function topic. no, मैं बता रहा हूँ what we are doing, ठीक है, मैं बताता हूँ just a minute, ठीक है। Suppose आपको अब actually objective, you are not familiar with the object oriented programming and the classes, so it is not the right time to say word object or class, so I'm trying to use different way of explaining। जब हम पढ़ेंगे ना what is object what is class, then I will discuss what is this matter actually, ठीक है। So suppose we have a function absolute function, ठीक है। Now what is the beauty of Python, we can use this, I have writing f equals to abs, ठीक है। So now abs function I can use f as a abs function, I can use f as a abs function, so this is the advantage of Python, ठीक है। कोई भी function है, you can take another variable name, you आप उसको assign कीजिए and then you can use that, ठीक है। So suppose abs is a long name, आपने क्या किया, I have written abs is equals to f is equals to abs, now every time I am using f instead of abs, ठीक है। You see the example है, ये देखो दोनों same output दे रहा है ये, yes or no, yes or no, please answer, Yes, sir. ठीक है। Now next thing is we are passing a function, we are passing a function in a function, ठीक है। So we are passing a function in a function। अब देखिए मैं कैसे यूज करता हूँ इसको, ठीक है। ओके यहाँ पे देखिए सपोज आई हैव राइटन समथिंग, import math and math dot sqrt4, what will be the output of this, what will be the output of this,
आई थिंक 2 सबको Four पता तो- है। नहीं, मेथड स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 आएगा ना, हाँ, यस सर 2। 2 आएगा, ठीक है 2 आएगा। अब देखिए मैंने क्या किया, आई हैव रिटन माय फंक्शन। मैंने क्या किया, मैंने एक अपना फंक्शन लिखा, ठीक है, एंड इन दिस फंक्शन आई एम पासिंग 2 थिंग्स, आई एम पासिंग 2 आर्गुमेंट, ठीक है। फर्स्ट और फिर मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, वी डू नॉट नो व्हाट इज दिस आर्गुमेंट, हमें नहीं पता। आई हैव जस्ट रिटन एनी नेम हियर, ठीक है, आई डू नॉट नो। आप ए बी भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट हियर ए और यू कैन राइट हियर बी आल्सो, ए कॉमा बी, ठीक है। आपको अगर देखो मैं लिख के दिखाता हूँ, वो थोड़ा नेमिंग अच्छी लगती है इसलिए हम लिखा था ये, यू कैन राइट ए और बी आल्सो, ठीक है। नाउ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ए बी, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया इन दिस फंक्शन, हमने क्या किया, आई हैव क्रिएटेड अ फंक्शन इन दिस फंक्शन, मैंने क्या लिख किया, 2 आर्गुमेंट पास किए, ए कॉमा बी, एंड देन व्हाट आई हैव रिटर्न ए ब्रैकेट बी। ए ब्रैकेट बी मतलब क्या होगा, आप इतनी टाइम से लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, दिस मस्ट बी अ फंक्शन, ए मस्ट बी अ फंक्शन, और इन दिस फंक्शन वी आर पासिंग बी आर पैरामीटर। एम आई राइट फ्रेंड, यस और नो? यस ए कोई एक फंक्शन होगा एंड इन दिस फंक्शन यू आर पासिंग बी, और जो उसका रिजल्ट हैगा यू आर रिटर्निंग दैट रिजल्ट। सो ऑब्वियसली ए क्या होगा, ए इज अ फंक्शन होगा और बी एक कोई पैरामीटर होगा, ठीक है। सो इसलिए वो मैंने पहले फंक्शन इस तरह से लिखा था, ठीक है, यू कैन यूज एनीथिंग, ठीक है। अब देखिए आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन, आई एम कॉलिंग दिस एग्जाम्पल फंक्शन, एंड इन दिस एग्जाम्पल फंक्शन आई एम पासिंग दिस मेथड डॉट स्क्वायर रूट, तो इट सर इज अ ए की फंक्शन जगह यार, अपना कोई भी फंक्शन लिख सकते हैं मैथ का, हाँ और बी ठीक की है। जगह अपनी वैल्यू दे सकते हैं। हाँ तो देखिए मैंने क्या किया, मैथ डॉट स्क्वायर रूट पास किया, यहाँ पे 4 पास किया, तो ए विल बिकम मैथ डॉट स्क्वायर रूट, बी विल बिकम 4, एंड आई एम रिटर्निंग ए ब्रैकेट बी, तो उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड वी आर पासिंग अ फंक्शन इन अ फंक्शन, ठीक है, वी आर पासिंग अ फंक्शन इन अ फंक्शन, यस और नो? यस। ठीक है। सो दिस विल हेल्प, द पासिंग अ फंक्शन इन अ फंक्शन will help in three main programming, three main topic. One is map function, second one is filter function, third one is reduce. If you remember in the last class when we were discussing list, मैंने आपको लैम्डा फंक्शन जब हम पढ़ रहे थे, मैंने मैप फंक्शन बताया था, फिल्टर फंक्शन बताया था, एंड रिड्यूस फंक्शन। सो डू यू वांट टू रिकॉल देम और वी कैन मूव नेक्स्ट टॉपिक? अभी फंक्शन में एक टॉपिक और रिमेनिंग है, यू कैन रिकॉल। ओके वी कैन रिकॉल, ओके ओके आई एम रिकॉलिंग, ठीक है। सो मैप पे मैं सबसे पहले एक मैप बता देता हूँ एक्चुअली है क्या, क्वेश्चन मार्क। सो सॉरी आई डू नॉट रिमेम्बर व्हाट इज मैप, ठीक है, मैं सीरियसली आई डू नॉट रिमेम्बर। सो व्हाट आई डिड, मैंने लिखा मैप क्वेश्चन मार्क। मैप में क्या है, मैप इज अ फंक्शन दिस विल टेक, मैं पढ़ाऊंगा ये क्या है, आई विल टीच दिस, ठीक है, दिस इज अ फंक्शन और इसमें क्या चीज होती है, आई विल टीच, ठीक है। सो इस फंक्शन में क्या है, मैप एक फंक्शन है दैट विल टेक फंक्शन एज एन आर्गुमेंट, फंक्शन के अंदर फंक्शन आया, एंड सेकंड इज इट विल टेक इटरेटेबल, इटरेटेबल मींस कोई भी लिस्ट होगा, कुछ भी लिस्ट होगा, कुछ भी इटरेटेबल चीज होंगी। सो एक फंक्शन है ये, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमने एक मैप फंक्शन लिया, एक फंक्शन उसमें पास किया इंटीजर, और वहां पे हमने पास कर दिया एक इटरेटेबल लिस्ट पास कर दी। तो ये क्या करेगा, ये जो इटरेटेबल जो है, जो ये वर्ड्स है ना, इसमें दिस विल अप्लाई दिस फंक्शन, दिस विल अप्लाई दिस फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन हुआ, सो यू कैन सी द आउटपुट हियर। देखिए अभी यहाँ पे जो वर्ड्स था, वर्ड्स में भी दिस इज अ लिस्ट, और इस लिस्ट में हमारे पास 4 स्ट्रिंग्स हैं, दीज आर द स्ट्रिंग्स नॉट अ नंबर, दीज आर द स्ट्रिंग्स, और स्ट्रिंग्स एज अ नंबर हैं, ठीक है, क्लियर। सो दीज आर स्ट्रिंग, ये क्या कर रहा है, दीज आर कन्वर्टिंग, देखो दिस इज कन्वर्टिंग फ्रॉम स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है ना, इनटू इंटीजर, दैट मीन ये फंक्शन अप्लाई कर रहा है, दिस आर अप्लाइंग अ फंक्शन, ठीक है। अब आप इसको प्रिंट कीजिए, देखिए, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको चेंज भी कर दिया, अपडेट भी कर दिया, सो वर्ड्स विल बिकम मैप इंटीजर वर्ड्स, ठीक है।
तो देखिए आउटपुट क्या है, ये ऑलरेडी लिस्ट थी, ये भी ऑलरेडी लिस्ट है, बट दिस टाइम जो लिस्ट है वो क्या है हमारे पास, दीज आर द स्ट्रिंग्स। देखिए अब इन्वर्टेड कॉमा में है, बट दीज आर द न्यूमेरिक, मतलब इंटीजर है। ठीक है, सो वी कैन यूज फंक्शन इनसाइड फंक्शन। वन एग्जांपल इज वी कैन यूज अ मैप इनबिल्ट फंक्शन है, उसके अंदर हम कोई अवर वी कैन यूज अवर ओन क्रिएटेड फंक्शन, जैसे कि लास्ट टाइम हमने लैम्डा फंक्शन यूज किया था। So we can use here lambda function also. I will show you the example here. ठीक है, देखो अगेन मैप क्या एक आई हैव टेकन अ लिस्ट हेयर। ठीक है, आई हैव टेकन अ लिस्ट हेयर। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, एक मैप फंक्शन में यहाँ से एक एक स्टेप करके बताता हूँ। एक मैंने मैप फंक्शन लिखा। मैप फंक्शन में क्या होता है, देयर आर टू थिंग्स, फर्स्ट वन इज द फंक्शन, सेकंड वन इज क्या होता है, इटरेटिवल्स। ठीक है, इटरेटिवल्स में मेरा क्या है, इटरेटिवल इज माय लिस्ट, और फर्स्ट इज अ फंक्शन। मैं कौन सा फंक्शन बना रहा हूँ, आई एम क्रिएटिंग माय ओन फंक्शन लैम्डा फंक्शन, लैम्डा एक्स इंट एक्स। ये क्या करेगा, इनबिल्ट फंक्शन मैंने जो इंट था वो यूज नहीं किया, मैंने अपना खुद का फंक्शन बनाया, एक लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन क्या करेगा, इट विल टेक एक्स और उसको क्या करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। मैप क्या करेगा, मैप में देयर आर टू आर्गुमेंट, फर्स्ट वन इज फंक्शन, सेकंड वन इज इटरेटेबल। सो वन बाय वन क्या करेगा, वो इससे एक एक आइटम लेगा लिस्ट से, और वो ये दिस फंक्शन विल अप्लाई, इट विल अप्लाई दिस फंक्शन। ठीक है, और फिर वो उसको आउटपुट देगा। सो देखिए, ठीक है, कैन आई डिलीट दिस, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी, आई हैव रिटन हियर। ठीक है, सो सी, सो दिस इज माय मैप फंक्शन। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, एवरीथिंग दैट इज इन दिस माय लिस्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू इंटीजर। ठीक है, इंटीजर करके वो फाइनली एक लिस्ट में स्टोर हो जाएगा, फाइनली वो लिस्ट में स्टोर हो जाएगा, एंड आई एम प्रिंटिंग दैट लिस्ट। आप देखिए आउटपुट। ठीक है, सो वी आर हैविंग द सेम थिंग, बट क्या हुआ, स्ट्रिंग से वो इंटीजर कन्वर्ट हो गया। सो यू कैन यूज डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, आप डिपेंड ऑन द विच फंक्शन यू आर यूजिंग। ठीक है, दिस इज क्लियर फ्रेंड, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो एक मैपिंग था, इसी तरह से फिल्टर फंक्शन यूज होता है। देन वी आल्सो हैव रिड्यूस फंक्शन, एक फिल्टर फंक्शन भी है। सी, फिल्टर फंक्शन में क्या होता है, फर्स्ट आर्गुमेंट इज अ फंक्शन और नन, मतलब आइदर फंक्शन पास करो और कुछ भी नहीं। सेकंड वन इज इटरेटेबल। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, रिटर्न इन इटरेटर yielding those item of the iterable for which the function is true। so ये वो चेक करेगा कि ये जो फंक्शन है ये ट्रू है और फॉल्स है, फॉर विच, इसके लिए it will check whether this function returns true or false। ठीक है, सो फॉर दिस इटरेटेबल्स, ठीक है, इट विल चेक ओनली ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं सेम चीज में यहाँ पे, सेम चीज अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे मैप की जगह फिल्टर यूज कर दूं, क्या होगा, जस्ट गिव मी आंसर, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन फ्रेंड? कुछ भी नहीं किया उसने। ठीक है, अब मैं सेम सर एग्जांपल फिल्टर दे का रहा हूँ। यूज क्या होता है? हाँ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा इस एग्जांपल से, देखें। फिल्टर क्या करता है, फिल्टर विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स, मतलब कि जो इटरेटेबल्स हैं, इट विल चेक द इटरेटेबल्स एंड इट विल चेक फॉर विच इटरेटेबल्स द फंक्शन इज ट्रू, फॉर विच इटरेटेबल द फंक्शन इज ट्रू। ठीक है, ठीक है, अब देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे क्लियर होगा आपको। दिस इज नॉट नीडेड हेयर। ठीक है, ये जस्ट आपका चेक करने के लिए था, समटाइम्स एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते थे। मैंने मैप की जगह फिल्टर दे दिया, देन यू नीड टू गेस द आउटपुट। ठीक है, देखिए आई एम जस्ट राइटिंग द फिल्टर हियर। ठीक है, एक इनबिल्ट फंक्शन यूज कर लेते हैं अगर आपको थोड़ा जल्दी करना है। देखें, ए इज इक्वल्स टू, सपोज आपके पास एक लिस्ट है, ओके, 1,2,3,4,5,6,7,8। ठीक है, आई एम जस्ट राइटिंग बी इज इक्वल्स टू लिस्ट फिल्टर। फिल्टर के अंदर मैंने अपना फंक्शन पास किया, लैम्डा एक्स कॉलन एक्स
x % 2 सॉरी %2 इज इक्वल्स टू 0, फिर मैंने यहाँ पे पास किया a, ठीक है। नाउ सी द आउटपुट, अब आपको क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। अब नाउ इज इट क्लियर? आई हैव टेकन अ लिस्ट, लिस्ट में क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर मैंने क्या किया, मैंने एक फिल्टर फंक्शन लिया, एक फिल्टर में मैंने एक आई हैव पास वन फंक्शन लैम्डा, और वो फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन विल चेक वेदर दिस एक्स इज इवन और ऑड, ठीक है, वेदर दिस फंक्शन इज इवन और ऑड, फिर वो ए के लिए फॉर ए, फिल्टर फंक्शन क्या करेगा, फिल्टर फंक्शन विल चेक ईच एलिमेंट ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो वो 1 के लिए चेक करेगा, 1 के लिए नो इट इज नॉट इवन, तो वो आउटपुट में स्टोर नहीं होगा। देन इट विल चेक 2, oh yes this function is true, it is even, so it will store this output. Then it will check 3, no it is not even, then it will check 4, yes it is even, so it will keep on storing, clear? So this is filter function, ठीक है। अब देखिए एक और एग्जांपल है, this time we have created lambda function, this time we have created another function. So मैंने अपना एक फंक्शन बनाया odd function df odd, इस फंक्शन में I have passed one argument n and I am returning n %2 is equals to 1, ठीक है। yes or no, मतलब ये चेक करेगा कि ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा ना, ये अगर ये ऑड होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, फॉल्स होगा तो ये इवन होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, yes or no friends, please answer। यस सर। तो ए में तो सिर्फ ऑड रिटर्न करेगा ना, इवन क्योंकि हाँ filter इसमें है। ऑड, ऑड होगा तो हाँ ट्रू हाँ होगा। ऑड रिटर्न, हाँ हाँ ठीक है, ऑड रिटर्न करेगा ये, ठीक है। अब देखो मैंने क्या ए इज इक्वल टू फिल्टर, एक फंक्शन पास किया ऑड, और फिर वैल्यू पास करी 1 से लेके 9 तक, दिस इज 1 से लेके 9। नाउ आई एम प्रिंटिंग प्रिंट लिस्ट, लिस्ट आपको लिखना जरूरी है, अदरवाइज इट विल नॉट प्रिंट एनीथिंग, इट विल जस्ट आपको मैं दिखा देता हूँ व्हाट विल हैपन। So it will just say it is a filter object अगर आप list use नहीं कर रहे हैं, so you need to use here list, ठीक है। So see the output here, क्या output आ रहा है 1 3 5 7 9, देखो, so it is giving me odd number from 1 to 9, clear है ये, range 10 मतलब क्या हुआ आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी, ठीक है। सो इट विल टेक ईच एलिमेंट, पहले इसने क्या किया 1 लिया, देन इट विल चेक 1 इज ऑड और नॉट, then it will take 2, then it will check whether it is odd or not, then it will take 3, then it will take 4, then it will take 5, ठीक है। और जिसके लिए फंक्शन ट्रू होगा that value will be stored in a, ठीक है। एक और एग्जांपल है यहाँ पर, ठीक है। तो फ्रेंड दिस इज क्लियर, filter function, and this time Sir, we are if you don't passing, mind, can you set the chat box the filter function? sorry, Sir, if you don't mind, can you send filter function in chat box? Any filter function? ओके उसके इसका डेफिनेशन और ये एग्जांपल, ओके ठीक है, मैं चैट बॉक्स में मैसेज करता हूँ, ओके ठीक है, मैंने मैसेज कर दिया है। और एक और था फिल्टर फंक्शन का, और दिस आई एम यू, ये भी मैसेज करता हूँ, ये भी कर दिया, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज, फिर वो एक टॉपिक रह गया जो मैंने बोला था स्टार स्टार वाला, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रिड्यूस, ठीक है। रिड्यूस फंक्शन है, रिड्यूस फंक्शन इज अवेलेबल इन फंक टूल, फंक टूल, ठीक है। रिड्यूस फंक्शन है, रिड्यूस फंक्शन क्या करता है, अगेन इट विल टेक अ फंक्शन, अगेन मैं इसको भी दिखा देता हूँ व्हाट इज रिड्यूस हियर, फर्स्ट मुझे लेकिन इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, सो आई एम राइटिंग हियर इंपोर्ट एंड reduc reduce क्वेश्चन मार्क, देखो reduce will take function and it will take some sequences, फिर ये क्या करेगा, apply a function, so it will apply this function of 2 arguments cumulatively, ठीक है।
टू द आइटम्स ऑफ द सीक्वेंस, क्यूमुलेटिवली वो उसको फंक्शन को अप्लाई करेगा। अब देखिए एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने क्या किया, आई हैव क्रिएटेड अ फंक्शन ऐड और आई एम जस्ट रिटर्निंग x प्लस वाई, ठीक है, आई एम क्रिएटिंग अ फंक्शन मल्टीप्लाई एंड आई एम जस्ट रिटर्निंग x इनटू y, ठीक है। नाउ आई एम जस्ट हैविंग अ लिस्ट 1 2 3 4, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं लिख रहा हूँ रिड्यूस ब्रैकेट ऐड कॉमा डेटा। क्या करेगा ये, डेटा इज व्हाट 1 2 3 4, add is what summation of two numbers, so first it will find the summation of first two numbers, so summation of 1 plus 2 what, summation of 1 and 2 is 1 plus 2, that is 3, so it is 3. Then it will find the summation of 3 with the next number, so 3 plus 3 is 6. Next it will find the summation of 6 with the next number, so 6 into 6 plus 4 is 10, so it will give you 10 output. If we are writing reduce multiply comma data, so multiply में मैं क्या कर रहा हूँ, I am just multiplying two numbers, so क्या करेंगे, data is 1 2 3 4, so ये क्या करेगा, it will just find 1 into 2, 1 into 2 क्या होगा 2, then it will find 2 into 3, 2 into 3 क्या होगा 6, then it will find 6 into 4, so next मतलब each it will take two numbers and with that it will apply that function repetitively cumulatively. So this is reduce function. Yeah, एक और example अगर if I can ask with you, I'm just adding here one more thing, 6. What will be the output, can you please guess, can you please guess what will be the output? No, So please 16. answer. इसका आउटपुट क्या होगा, So 16. 1 2 3 3 6 4 10 16, ठीक है। इसका आउटपुट 1 2 2 3 6 24 144, am I right? Yes, sir. Yes, sir. 1 4 16 140, ठीक है। So this is for today. I want to discuss one more thing that is left here actually. This thing, this you find many times when you learn inbuilt functions. I want to discuss this also, so I will discuss this in the next class, ठीक है। I want to finish in the class, but हमने map और reduce जो पहले से पढ़ा था, we discussed this, so okay, no problem, ठीक है। So we will discuss this in the next class. Sir, I have two questions. हाँ, yes, ask. First of all, I am So we have to disenrolled from CodeZinger हाँ, and I'm not able to enter class or do any assignments. sorry. I am disenrolled from CodeZinger. Okay, आप मुझे अपना ये बताइए, I can give you, I will enroll once again. Your batch number, Batch number 1. batch number 1. Okay, students. Okay, tell me your ID. E21. Yes, PCA सर 0013 के बाद 20 लगा दो बस. 20. Yes. This one, हाँ जी. ठीक है। आपका तो इसमें दिखाई नहीं है। No student enrolled. आपने रजिस्टर किया है कोड जिंजर पर? हाँ सर, मैंने असाइनमेंट्स करे हैं सारे अभी तक के. इनरोल स्टूडेंट पे मैं जाता हूँ, अपलोड करता हूँ। ओके, E21 BCA U0020 Yes sir. .edu.in, this one. Okay. हाँ जी. ओके, मैं इसको ऐड आपके पास इनविटेशन आएगा, यू जस्ट एक्सेप्ट दैट इनविटेशन, Okay sir. ठीक है। And second question सर, देखो ये आ हमारी गया, जो इनरोल्ड हो गया। हो गया. हाँ, हो गया। नेक्स्ट, हाँ सर, सेकंड क्वेश्चन ये था कि हम अपनी असाइनमेंट्स कहाँ से अटेंडेंस कहाँ से चेक करें?